أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر قسم کی روحانی، جسمانی اور وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے. جی، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 122، لیسن نمبر 122 یعنی 122، اور یہ ہے سمر کورس لیول 4. ٹھیک ہے، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ناظرہ قرآنی قاعدہ کا پیج نمبر 30 سے 39 تک، جس میں ہم پڑھ رہے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور نون ساکین اور تنوین کے احکام. اور حفظ میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھنا سیکھیں گے سورۃ القاریعہ مکمل تجوید کے قواعد کے ساتھ، سورۃ علم نشرح، سورۃ القدر، اور دعاؤں میں ہم یاد کریں گے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں یعنی بعد کے اذکار، اور آیت الکرسی، اور پھر کفارۃ المجلس. تو چلیں ہم کوئی بھی ٹائم ضائع کیے بغیر ہم انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کریں گے تاکہ ہمارا قرآن کا تلفظ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. اور قاعدے پر ہم مکمل توجہ دیں گے، مکمل توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ قاعدے کو اگر ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر قرآن کا تلفظ جو ہے وہ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے. اصل میں تلفظ جو ہے وہ قاعدے میں ہی ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے قاعدے پر ہی، حرکات پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے. حروف مدہ، حروف لین، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر قرآن کا تلفظ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جی، ہمارے سامنے پیج کھل چکا ہے، پیج نمبر 30 اور 31. سبق کے ساتھ ہی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں سبق کے ساتھ ہی مشق لاتی ہوتی ہوں تاکہ سبق کے ساتھ ہی مشق کی جائے، تاکہ اچھے طریقے سے اس سبق کی مشق ہو جائے اور اچھے طریقے سے اس حرکت کی بھی پہچان ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے ہے جی حمزہ کھڑی زبر آ. ٹھیک ہے، عربی میں ہم اس کو پڑھتے ہیں حمزہ فتح طویلہ آ بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور الف صغیرہ آ بھی پڑھتے ہیں. الف صغیرہ آ، حمزہ فتح طویلہ آ، یا حمزہ کھڑی زبر آ. آواز اس کی آ ہی آئے گی، اوپر کو ہی اٹھے گی. ٹھیک ہے، اور اس کو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں. یہ حرف مدہ کے برابر کھینچا جاتا ہے، الف مدہ کے برابر. تو چلیے بیٹا اس کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. حمزہ کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا. سا زبان کی نوک سے آپ نے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، سا کا مخرج یاد رکھنا ہے آپ نے. سا کھڑی زبر سا، سیٹی کی آواز نہ آئے. اگر آپ کہیں گے سا تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، سا. جیم کھڑی زبر جا، ہا. ہا کو آپ نے گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. ہا کھڑی زبر ہا. خا کھڑی زبر خا. دال کھڑی زبر دا. رال. سا اور زال کا ایک ہی مخرج ہے، سا، زال اور ضا. ٹھیک ہے، زال کھڑی زبر زا. را کھڑی زبر را. زا کھڑی زبر زا. سین کھڑی زبر سا. شین کھڑی زبر شا. صاد کھڑی زبر صا. ضاد کھڑی زبر ضا. طا کھڑی زبر طا. ظا کھڑی زبر ظا. عین. عین کو بھی گلے کے درمیان سے نکالنا ہے. عین اور ہا کا ایک ہی مخرج ہے. عین کھڑی زبر آ. غین کھڑی زبر غا. غین اور خا کا ایک ہی مخرج ہے. فا کھڑی زبر فا. قاف. قاف کو زبان کی جڑ سے ادا کرنا ہے آپ نے، قاف. قاف کھڑی زبر قا. کاف. کاف کھڑی زبر کا. لام کھڑی زبر لا. میم کھڑی زبر ما.
नून खड़ी जबर ना, वाव खड़ी जबर वा, हा खड़ी जबर हा, गले के आखिरी हिस्से से सीने से हा खड़ी जबर हा खड़ी जबर हा, ये हा है दोनों और ये हा है गले के दरमियान से, हा हा। हमजा खड़ी जबर आ, हमजा का भी मखरज हा वाला ही है गले के आखिरी हिस्से से, या खड़ी जबर या। अब है जी इसकी मश्क। मश्क अब आप देखें कैसे आप मश्क करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि खड़ी जबर रेड कलर की है, ठीक है। तो ऊपर हमने खड़ी जबर का सबक पढ़ा है और अब है खड़ी जबर की मश्क, ठीक है। या जबर खा यख, शीन खड़ी जबर शा, यखशा यखशा, सीन जबर सा, जीम खड़ी जबर जा, सजा, क़ाफ जबर क़ा, लाम खड़ी जबर ला, क़ाला, आइन जबर आ, लाम खड़ी जबर ला, आला, गैन जबर गा, वाव खड़ी जबर वा, गवा, आइन जबर आ, स्वाद खड़ी जबर सौ, आसौ, आइन जबर आ, सीन खड़ी जबर सा, आसा, तो जबर ता, गैन खड़ी जबर गौ, तौगा, अपने तो को पुर पढ़ना है, तौगा, या जबर हा यह, या खड़ी जबर या, यह हा को गले के दरमियान से, या, हमजा जबर हा आह, वाव खड़ी जबर वा, ahwa। इसी तरह से रोमा, रोआ, यारो, इसहाक, बगैर जोड़ के भी आपको पढ़ना आना चाहिए, इसहाक, आखरा, अगर आप वक्फ करते हैं तो इसहाक, काफ के ऊपर आपने कलकला करना है, आखरा आखर, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से याद कर लें। इसके अलावा फिर जहां पर भी ऐसे लफ्ज आएंगे खड़ी जबर वाले आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, खड़ी जबर के बाद अब हमारे सामने पेज खुल चुका है खड़ी जेर का। हम खड़ी जबर पढ़ रहे थे यानी ऊपर को आवाज उठ रही थी, और अब है खड़ी जेर तो इसकी आवाज नीचे को लंबी होगी, ठीक है। तो चलें, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा, जबान की नोक को सामने वाले ऊपर के दो दांतों से लगाएंगे तो सा खड़ी जेर सी, जीम खड़ी जेर जी, हा खड़ी जेर ही, हा को गले के दरमियान से अदा करेंगे, हा खड़ी जेर ही, खा खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जेर दी, राल खड़ी जेर री, रा खड़ी जेर री, जा खड़ी जेर जी, सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी, स्वाद खड़ी जेर सी, द्वाद खड़ी जेर दी, तो खड़ी जेर ती, वा खड़ी जेर ज़ी, आइन खड़ी जेर आई, गैन खड़ी जेर गई, फा खड़ी जेर फी, कौफ खड़ी जेर की, कौफ को जबान की जड़ से अदा करेंगे, कौफ खड़ी जेर की। उसके बाद है कैफ, कैफ खड़ी जेर की, लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, वाव, वाव, वाव नहीं कहेंगे, वाव मुंह खोल के नहीं कहना होता, वाव, ये होंठ बंद हो जाते हैं साइडों से, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं वाव, वाव खड़ी जेर हुई, हा खड़ी जेर ही, गले के आखिरी हिस्से से हा खड़ी जेर ही, हमजा खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर ही। अब है खड़ी जेर की मश्क। इसको हमने इसके हिज्जे किस तरह करने हैं, स्पेलिंग किस तरह करने हैं, वो इस तरह, बा जेर बी, बा को छोटा पढ़ेंगे और ही को खींचेंगे, ठीक है, खड़ी जेर की वजह से, बा जेर बी,
हा खड़ी जेर ही, बी ही, फा जेर या फी। अब चूंकि यहाँ पे या मद्दा भी है इसलिए फा को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, और हा को खड़ी जेर की वजह से। फी ही, काफ जबर बा कब, लाम जेर ली, कबली, लाम को छोटा पढ़ेंगे, हा खड़ी जेर ही, कबली ही। बा जबर इन बा, आइन को गले से निकालना है, गले के दरमियान से। बा, दाल जेर दी, बा दी, हा खड़ी जेर ही, बादी ही। रा पेशरू, सीन पेशू, रूसू, लाम जेर ली, रूसूली, हा खड़ी जेर ही, रूसूली ही। अमली ही, बे अब, बा के ऊपर आपने कलकला करना है, बा को छोटा, आइन जबर बा अब, दाल जेर दी, दाल को भी छोटा, बे अब दी ही। बा जबर तौबत, नून जेर नी, बतनी, नून को छोटा, हा खड़ी जेर ही, बतनी ही। वाव जबर जीम वज, जीम को पर कलकला, हा जेर ही, वज ही, हा खड़ी जेर ही, वज ही। नून जबर सी नस, ता जबर हा तह, नस्तह, हा को गले के दरमियान से, नस्तह, या खड़ी जेर ये, नस्तही। बा जेर बी, या जबर या, बिया, दाल जेर दी, बिया दी, हा खड़ी जेर ही, बिया दी ही। बा जेर बी, आइन जबर आ, बिया, मीम जबर मा, बियामा, लाम जेर ली, बियामाली, हा खड़ी जेर ही, बियामाली ही। बा जेर बी, वाव जबर वा, बी वा, वाव को छोटा, लाम जबर ला, लाम को भी छोटा, बी वाला, दाल जेर दी, बी वाला दी, वाव लाम दाल इनको छोटा, बा सबको, हा खड़ी जेर ही, बी वाला दी ही। बस ही को खींचना है, बाकी सबको छोटा पढ़ना है। हा खड़ी जबर हा, यहाँ पे खड़ी जबर की वजह से हा को खींचेंगे, जाल जेर दी, हाजी, हा खड़ी जेर ही, हाजी ही। हा को खींचना है और इस हा को खींचना है, जाल को छोटा पढ़ना है, हाजी ही। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ईला, फा जेर फी, हा जेर मीम हिम, ईला फीहिम, यहाँ पे फा को छोटा पढ़ना है, ईला फीहिम। ठीक है, इसी तरह से इसको पढ़ेंगे। जी, हमारे सामने पेज खुल चुका है उल्टा पेश का। ठीक है, जिस तरह खड़ी जबर खड़ी जेर को लंबा किया, इसी तरह उल्टे पेश को भी लंबा करेंगे, और इसके लिए यू, यू की तरफ आवाज निकालेंगे। ठीक है, हमजा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, सा। जीम उल्टा पेश जू, हा, हा उल्टा पेश हो, खा उल्टा पेश खू, दाल उल्टा पेश दू, जाल उल्टा पेश जू, रा उल्टा पेश रू, जा उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, शीन उल्टा पेश शू, स्वाद उल्टा पेश सू, वाद उल्टा पेश दू, ता उल्टा पेश तू, वा उल्टा पेश दू। आइन गले के दरमियान से, आइन उल्टा पेश हू, गैन उल्टा पेश गू, फा उल्टा पेश फू, कॉफ उल्टा पेश कू, काफ उल्टा पेश कू, लाम उल्टा पेश लू, मीम उल्टा पेश मू, नून उल्टा पेश नू, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हा उल्टा पेश हू, हमजा उल्टा पेश ऊ, या उल्टा पेश यू। ठीक है, ये था सबक। अब इसी तरह से इसकी मश्क। आइन जेर आई, बा जबर अलिफ बा, अलिफ मद्दा, आइन जेर आई, बा जबर अलिफ बा, बा अलिफ मद्दा, बा दाल जबर दा, इबादा, हा उल्टा पेश हू, इबादा हू, फा जेर फी,
स्वाद खड़ी जबर सौ, फी सौ लाम पेश लू, फी सौलू, हा उल्टा पेश हू, फी सौलू हू, काफ जबर वाव कौ, मीम पेश मू, कौमू, हा उल्टा पेश हू, कौमुहू। यहाँ पे वाउलीन और मीम को छोटा पढ़ेंगे, कौमुहू। हमजा जबर मीम अम, रा पेश रू, अमरू, हा उल्टा पेश हू, अमरूहू। आइन जबर आ, मीम जबर मा, आमा, लाम पेश लू, आमालू, हा उल्टा पेश हू, आमालूहू। आमा, आइन को छोटा, मीम को छोटा, लाम को छोटा, हू को खींचना है, आमालूहू। ख्वा जेर खी, ता खड़ी जबर ता, खीता, मीम पेश मू, खीतामू, हा उल्टा पेश हू, खीतामूहू। खड़ी जबर ता के ऊपर, खा को छोटा, ता को खींचेंगे, मीम को छोटा और हू को खींचेंगे, खीतामूहू। कैफ जेर की, ता खड़ी जबर ता, किताबा जबर बा, किताबा, हा उल्टा पेश हू, किताबहू। आइन जबर आ, जाल जबर अलिफ ज़ा, आज़ा, बा जबर बा, आज़ाबा, हा उल्टा पेश हू, आज़ाबहू। जाल को खींचेंगे अलिफ की वजह से और बा को छोटा और हू को उल्टे पेश की वजह से, आज़ाबहू। लाम जबर ला, हा उल्टा पेश हू, लाहू। मीम जबर मा, आइन जबर आ, मा आ, हा उल्टा पेश हू, मा आहू। या जबर या, रा जबर रा, या रा, हा उल्टा पेश हू, या राहू। या को छोटा, रा को छोटा और हू को खींचेंगे उल्टे पेश की वजह से, या राहू। हमजा जबर काफ अक, फा जबर फा, अकफा, रा जबर रा, अकफारा, हा उल्टा पेश हू, अकफाराहू। ख्वा जबर ख्वा, लाम जबर ला, ख्वाला, कौफ जबर कौ, ख्वालाक़ा, हा उल्टा पेश हू, ख्वालाक़ाहू। खा को छोटा, लाम को छोटा और काफ को भी छोटा पढ़ेंगे और हू को खींचेंगे, ख्वालाक़ाहू। हमजा जबर आ, मीम जबर अलिफ मा, अलिफ मद्दा, आमा, ता जबर ता, आमाता, हा उल्टा पेश हू, आमाताहू। मा को खींचा अलिफ मद्दा की वजह से और ता को बीच में छोटा पढ़ना है और हू को खींचना है और आ को भी छोटा कहना है, आमाताहू। रा जेर जा रिज, काफ पेश कू, रिज़्क़ू, हा उल्टा पेश हू, रिज़्क़ुहू, रिज़्क़ुहू। कौफ को जबान की जड़ से, रिज़्क़ुहू। ठीक है, इसी तरह से इसको पढ़ेंगे जी। अब हमारे सामने पेज खुल चुका है नून साकिन और तनवीन के क़वायद का। ठीक है, नून साकिन और तनवीन जो है उसके 4 कायदे हैं और सबसे पहले बता रही हूं आपको मैं कि नून साकिन कौन सा होता है। ये नून साकिन होता है जिसके ऊपर जज्म होती है, ये नून साकिन है, ये नून साकिन है। ठीक है, और तनवीन क्या होता है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन और तनवीन के क़वायद का मतलब यह है कि नून साकिन या तनवीन के बाद जो है कुछ हरूफ हैं, अगर वो आ जाएं तो उन हरूफ के बाद कौन सा कायदा लगता है आज ये भी समझेंगे। और नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। पहला है इख्फा, फिर है इजहार, फिर है इकलाब और फिर है इदगाम। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज इस जो हमारा लेवल 4 है उसमें हम 2 कायदे सीखेंगे। कायदा नंबर जो है वो पहला कायदा नंबर 1 इख्फा और कायदा नंबर 2 इजहार। ये 2 कायदे हम इसमें सीखेंगे और इसकी मश्क भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अब ये है कि नून साकिन और तनवीन के जो क़वायद हैं 4 क़वायद हैं और जितने हरूफ तहज्जी हैं वो सब उनके अंदर डिवाइड हैं। जिस तरह से इख्फा में 15 हरूफ हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो, ता है, सा है, जीम है। ठीक है, और देखें इसमें बा नहीं है। ठीक है, और जीम है, फिर दाल है, जाल है, जा है, देखिए इसमें रा भी नहीं है, फिर सीन है, शीन है,
सौद है, दौद है, तो, ज़ा, फा, फिर कौफ, कौफ और कैफ। ठीक है, ये हरूफ जो है ये हरूफ इख्फा हैं। अब बाकी जो बच गए हैं वो कुछ इजहार में होंगे, एक हर्फ बा इकलाब में होगा और बाकी के इदगाम में होंगे। तो ये टोटल हरूफ तहज्जी के हरूफ जो हैं वो इन 4 कवायद के अंदर डिवाइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कायदा ये बनता है, डेफिनेशन जो बनती है इख्फा की वो ये है कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यानी 2 ज़बर या 2 ज़ेर दो पेश के बाद अगर इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर नून की आवाज को छुपा कर पढ़ेंगे, गुन्ना के साथ गुन्ना करेंगे, लेकिन नून की आवाज को छुपाते हुए, इख्फा करते हुए। अब जो है कोई भी कायदा जब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जबान जो है वो मखरज पर टिकती है, लेकिन इख्फा में क्या होगा कि हम नून साकिन की आवाज को छुपाएंगे, जबान को कहीं पर लगाए बगैर जुबान जो है वो मुअल्लक रहेगी, लटकती रहेगी, वो कहीं पर टिकेगी नहीं, किसी भी साइड को वो टच नहीं करेगी, किसी के साथ वो नहीं लगेगी, वो मुअल्लक रहेगी यानी लटकती रहेगी बीच में। ठीक है, तो चलें अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे मीम जेर नून में जबान मेरी कहीं पर भी नहीं लगी। मैं काफ पेश मीम कुम, मैं कुम, मीम जबर नून मा, काफ जबर अलिफ का, मा का, नून जबर ना, मा का ना। इसी तरह मैं कबलू तुस्लिहू, फमा ताबा, ता के साथ अलिफ मद्दा है इसलिए खींचेंगे, फमा ताबा। आगे युफाउ, आज़ला, आज़ला, वल आफा, वल आफा। अगर हम पढ़ेंगे वल अनफा तो ये गलत होगा। ठीक है, हमने इख्फा करना है, वल आफा, दिही, दिही, आदीनीही, इख्फा हो गया। दी को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, नून को छोटा पढ़ेंगे और ही को खींचेंगे खड़ी जेर की वजह से, आदीनीही। ताक़िमूना, कौफ को ज़बान की जड़ से, ताक़िमूना, मीम को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से, ताक़िमूना। युनफ़िक़ु, युनफ़िक़ु। ठीक है, अब हाँ दूसरा कायदा है इजहार का। इसमें जो है ये देखें 6 हरूफ हैं, हरूफ इजहार जो हैं इनको हरूफ हल्की भी बोलते हैं, हमजा हा, आइन हा, गईन खा। ये 6 के 6 हरूफ जो हैं वो हल्क से अदा होते हैं। ठीक है, तो ये इजहार के हरूफ हैं। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाएगा तो वहां पर हम इजहार करेंगे, नून मुकम्मल पढ़ेंगे, नून को जाहिर करके पढ़ेंगे, छुपाएंगे नहीं। जैसे इख्फा में हमने छुपाया, यहां पर हमने छुपाना नहीं है। इसे हमने यानी नून के बाद पूरा नून अदा करके हमने अगला हरूफे हल्की अदा करना है। ठीक है, जैसे मीम जेर नून मिन, मिन, हा पेश हु, मिन हु, मिन हु। ठीक है, आइन जबर नून अन, हा पेश हु, अन हु, हमजा जबर आ, खा पेश नून खुन, आखुन, हा पेश हु, आखुन हु। मिन हिकमतिन, हा को गले के दरमियान से, मिन हिकमतिन, मिन इल्मिन, मिन इल्मिन, मिन खिलाफिन, खा, मिन खिलाफिन, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, खींचेंगे, मिन खिलाफिन। मन आमना, मन आमना, अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है, मन आमना। अन अमरी, अन अमरी। मिन गैरी, मिन गैरी। ठीक है, तो ये आपने 2 कायदे सीखे, इख्फा और इज़हार का। अगर आपको जल्दी है, आप सारे कायदे एकदम सीखना चाहते हैं मिसालों के साथ, तो मेरा लेक्चर नंबर
22, लेक्चर नंबर 22 जो है उसको आप सर्च करेंगे, लेक्चर नंबर 22, उसमें नून साकिन और तनवीन के मुकम्मल कवायद हैं और मिसालों से समझाए गए हैं। तो अगर आप पूरे चारों कायदे एक साथ आप सीखना चाहते हैं तो आप लेक्चर नंबर 22 को निकाल के आप सुने, उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको चारों कायदे जो हैं एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, अब दुआओं में से जो हमने सिलेक्ट की हैं यानी लेवल 4 के लिए, तो वो है सलाम फेरने के बाद के अज़कार। जब हम नमाज पढ़ लेते हैं, सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद हमने 3 दफा, एक दफा हम कहेंगे ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर, फिर हम कहेंगे 3 टाइम हमने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु। देखिए हमने इख्फा सीखा था, तो यहाँ पर इख्फा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इख्फा है, नून साकिन के बाद देखें ता है, नून साकिन के बाद काफ है। ठीक है, अल्लाहुम्मा लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे और मीम के ऊपर गुन्ना करेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा आइन्नी, अल्लाहुम्मा आइन्नी, पहले आ फिर आइन, फिर नून मुशद्दद का गुन्ना करते हुए नून को खींचेंगे। आइन्नी, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, व शुक्रिका, का को आपने छोटा पढ़ना है, व शुक्रिका और बारीक काफ है, व हुस्नी इबादतिका, इबादतिका। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। ठीक है, बहुत अच्छी दुआ है। जब हम नमाज खत्म करते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, मैं तेरा जिक्र करती रहूं, मैं तेरा शुक्र अदा करते रहें हम, और या अल्लाह हम अच्छे तरीके से तेरी इबादत कर सकें, ऐसी इबादत जो तुझे पसंद हो। तो ये इस दुआ का मतलब है। ठीक है, फिर हमने 3 टाइम हमने पढ़ना है सुबहान अल्लाह 33 टाइम, फिर 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, फिर हमने 33 टाइम ही अल्लाहु अकबर, फिर हमने एक दफा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पर भी इख्फा हो रहा है, तनवीन के बाद कौफ है, शैइन कदीर। ठीक है, और ये दुआ जो है ये फिर पूरा 100 का आदद हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली दुआ जो है ये बाजार में भी पढ़ते हैं, ये बाजार में दाखिल होने की दुआ भी है, और नमाज के बाद की अज़कार में से भी ये दुआ है, और सुबह शाम इसको 10 दफा पढ़ते हैं। इसके 10 दफा पढ़ने की बड़ी फजीलत है, और इसको सुबह शाम 100 दफा भी पढ़ते हैं, उसकी भी बहुत फजीलत है। ठीक है, तो चलें, अब आपने इसी तरह से इनको नमाज के बाद, जब आप नमाज पढ़ेंगे आपने ये अज़कार सारे उसमें पढ़ने हैं उसके बाद। ठीक है जी, अब हमारे सामने आयतल कुर्सी का पेज खुल चुका है, क्योंकि ये भी नमाज के बाद पढ़ी जाती है, नमाज के बाद पढ़े जाने वाले अज़कार में आयतल कुर्सी भी शामिल है। ठीक है, और आयतल कुर्सी के बड़े फवायद हैं, बड़े फायदे हैं। इसको सुबह शाम पढ़ते हैं, इसको हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, इसको सोने के टाइम पे पढ़ते हैं, इसको घर से बाहर जाते वक्त पढ़ते हैं, और जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में अल्लाह ताला फरिश्तों को मामूर कर देते हैं, फरिश्तों को हिफाजत पर लगा देते हैं, उस घर की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और सही तजवीद के साथ इसको पढ़ना सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु, लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, अल्लाहु
ला इलाहा, यहाँ पे मद है, खींचेंगे, और लाम के ऊपर खड़ी जबर है, ला इलाहा इल्लाहू, हम रुके हैं तो इसलिए हमने हु पढ़ा है। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्युल क़य्यूम, हा को गले के दरमियान से, कौफ को जबान की जड़ से, और या को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु, लाम के साथ अलिफ है इसलिए इसको खींचेंगे, ला ऐसे आपने पढ़ना है, ला ता, फिर यहाँ झटका देना है, ला तअख़ुज़ुहु, खा को छोटा, दाल को छोटा, हु को खींचेंगे उल्टे पेश की वजह से, ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, यहाँ पर नून साकिन और तनवीन का कायदा नंबर 4 जो है इदगाम वो लग रहा है। सीनतुन वला अलिफ मद्दा, वला नौम, लाहू उल्टा पेश, लाहू मा अलिफ मद्दा, लाहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, खड़ी जबर है, मीम के ऊपर वाव के ऊपर खींचेंगे, और वमा अलिफ मद्दा है, फिल अर्द मा ज़ल्लज़ी, यहाँ इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद जाल, तो इसलिए यहाँ पे इख्फा का कायदा लग रहा है। इसको पढ़ेंगे इस तरह से, मा ज़ल्लज़ी, और जाल को जबान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से, मा ज़ल्लज़ी, ज़ी को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, यशफ़अउ, फा को छोटा, आइन को भी छोटा, यशफ़अउ दाहू, यहाँ भी इख्फा, नून साकिन के बाद दाल, और यहाँ पे मद पैदा हो रही है, मद खींचेंगे, और इल्ला लाम के साथ अलिफ मद्दा है, इल्ला को खींचेंगे, बी इज नी ही, नून को छोटा पढ़ेंगे, बी इज नी ही को खींचेंगे खड़ी जेर की वजह से, और अगर रुकेंगे तो फिर बी इज निह, ठीक है। यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, इल्ला बिइज़्निह, यअलमु, आइन को गले के दरमियान से, यअलमु, लाम को छोटा और मीम को भी छोटा, यअलमु, मा मीम के साथ अलिफ मद्दा, मा बैना यालीन, मा बैना नून छोटा, यअलमु मा बैना ऐदीहिम, आई यालीन, दी या मद्दा, आई दी, यहाँ या से पहले जबर है, यहाँ या से पहले जेर है, ये यालीन और ये या मद्दा, ऐदीहिम वमा खल्फहुम वला, इसको खींचेंगे अलिफ मद्दा की वजह से, वला ही को खींचेंगे या मद्दा की वजह से, त्वा को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिह, बिशैइन, शै यालीन, इमिन यहाँ पे इदगाम हो रहा है, मिन इल्मी इजहार हो रहा है, नून साकिन के बाद आइन हरूफे हल्की में से, तो यहाँ इजहार हो रहा है, जल्दी पढ़ेंगे, पूरा नून अदा करेंगे, मिन इल्मी ही, यहाँ भी मद पैदा हो रही है, मद जायज, इल्ला, ठीक है, लाम के साथ अलिफ मद्दा है, इल्ला, फिर बीमा, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, बीमा शाआ, ठीक है, मद यहाँ पे मद वाजिब है, इसको खींचेंगे, बीमा शाआ, वसिया, सीन को छोटा पढ़ेंगे, आइन को भी छोटा पढ़ेंगे, वसिया कुर्सियु, या के ऊपर शद है, कुर्सियु, हुस्सा मावाती, सीन को छोटा, हुस्सा मावाती, मीम को खींचेंगे, वाव को खींचेंगे खड़ी जबर की वजह से, हुस्समावाती वल अर्द वला याऊदुहु, वला लाम अलिफ ला, अलिफ है, वला याऊदुहु, ऊ को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से, दाल को छोटा पढ़ेंगे, और हु उल्टा पेश है, वला याऊदुहु हिफ्जुहुमा, हिफ वस्ते हलक से गले के दरमियान से हा, हिफ्जु, जबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगाएंगे और अदा करेंगे जू, हुमा, हा गले के आखिरी हिस्से से, और मीम के साथ अलिफ मद्दा है, खींचेंगे, हिफ्जुहुमा, वाहु वल, वाव को छोटा पढ़ेंगे, हा गले के आखिरी हिस्से से,
والعلی العلی العظیم، علی العظیم. ایک دفعہ پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اس طرح سے اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے سامنے پیج کھل چکا ہے صورتوں کا. جو ہم نے لیول 4 کے لیے صورتیں سلیکٹ کی وہ صورتوں کا پیج جو ہے وہ کھل چکا ہے. تینوں صورتوں کو میں ایک ہی پیج پر میں نے سیٹ کیا ہے تاکہ ایک ہی پیج پر سامنے رہیں تاکہ آپ ان کو یہاں سے یاد کر سکیں. چلیں تو سب سے پہلی صورت ہے سورۃ القاریعہ. سورۃ القاریعہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعۃ قاف کے ساتھ الف مدہ ہے تو کھینچیں گے. القاریعۃ ملقاریعہ ملقاریعہ وما ادراک. ٹھیک ہے میم کے اوپر مد ہے کھینچیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے جیسے کہ آپ سیکھ چکے ہیں قلقلہ. اور را کے اوپر کھڑی زبر ہے. وما ادراک ملقاریعہ. یوم واولین یقو واو مدہ اور یہاں پہ نون مشدد کا غنہ ادا کریں گے اور الف کو کھینچیں گے. ٹھیک ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. را کے ساتھ الف ہے تو را شل مب. با کے اوپر قلقلہ ہے اور سا کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. کالفراش المبثوث. وتکون الجبال واو مدہ ہے. وتکون الجبال با کے ساتھ الف مدہ ہے. جبالو کل اہنل کل عین کو ہا سے ملانا ہے تو بنے گا کل اہنل منفوش. یہ دیکھیں یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد فا اور فا کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے. منفوش. فَأَمَّا میم مشدد کا غنہ ادا کریں گے اور الف مدہ. فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَا ثَقُلَتْ یہاں پر بھی اخفا ہو رہا ہے اور قاف زبان کی جڑ سے. اور موازینہ واو کے ساتھ الف مدہ اور زا کے ساتھ یا مدہ اور نون کو چھوٹا پڑھیں گے اور ہو کو کھینچیں گے الٹے پیش کی وجہ سے. ما ثقلت موازینہ موازینہ. فہوا فا کو چھوٹا ہا کو چھوٹا واو کو چھوٹا. فہوا فی کے ساتھ یا مدہ ہے. عین کے ساتھ یا مدہ ہے. شین کو چھوٹا پڑھیں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تن راضیہ نہیں پڑھنا تر راضیہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے ادغام بغیر غنہ. ٹھیک ہے. فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ راضیۃ ہے تو وقف کی صورت میں راضیہ. وَأَمَّا من خفت اظہار ہے یہاں پر. من خفت موازینہ فَأُمُّهُ ہاویہ.
मीम मुशद्दद का गुन्ना अदा करेंगे। फ़उम्मुहु उल्टा पेज, हा के साथ अलिफ है, फ़उम्मुहु हाविया। वमा अदराका, मीम के ऊपर मद है, मद जायज, और दाल के ऊपर कलकला। वमा अदराका, रा के ऊपर खड़ी जबर, काफ को बारीक पढ़ेंगे और छोटा पढ़ेंगे, मीम के साथ अलिफ मद्दा है, ठीक है। वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, नून के साथ अलिफ मद्दा, और तनवीन के बाद हा है तो यहाँ पे क्या होगा, इजहार होगा, नारुन हामिया। चलें एक दफा सुन लें फिर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअह वमा अदराका मल-क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल-फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल-अहनिल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ऐशतिर रादियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ठीक है, अगली सूरत है हमारी सूरतु अलम नशरह। सूरतु अलम नशरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह, यहाँ पे इजहार शफवी हो रहा है, अलम नशरा, मीम के फौरन बाद हम नून अदा करेंगे और रा को हा से मिलाएंगे, हा गले के दरमियान से निकलेगा। स्वाद, दाल के ऊपर कलकला करेंगे और रा को छोटा पढ़ेंगे और काफ को बारीक पढ़ेंगे। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक। क्या इख्फा है यहाँ पर, ठीक है। अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक, यहाँ पे या मद्दा है यानी मद जायज है, और अन्क़द नू यहाँ पर इख्फा है और कौफ को जबान की जड़ से अदा करना है। द्वाद, द्वाद को पुर पढ़ना है और जबान की करवट से अदा होगा। क़द ज़हरक, जबान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से। ज़हरक, हा को गले के आखिरी हिस्से से निकालेंगे। ज़हरक वरफ़अना, नून के साथ अलिफ मद्दा है, रा को पुर पढ़ना है और आइन को गले के दरमियान से निकालना है। वरफ़अना लका, छोटा पढ़ेंगे। ज़िक्रक, ज़िक्रक, बारीक काफ है, ज़िक्रक। फ़इन्ना, फ़इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना है, आप नून मुशद्दद का गुन्ना अदा करेंगे। फ़इन्ना माअल, मीम को छोटा पढ़ना है, आइन को लाम से मिलाएंगे गले के दरमियान से। माअल उसरी युसरा, इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना, इन्ना माअल उसरी युसरा, माअल उसरी युसरा। फ़इज़ा, ज़ाल को ज़बान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से। फ़इज़ा फ़रग़ता, रा को पुर पढ़ेंगे और गईन गले के ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले हिस्से से गईन, फ़रग़ता, सामने वाले दो दांतों की जड़ से लगेगा तो ता अदा होगा। फ़रग़ता फ़स्वब, इख्फा हो रहा है, फ़स्वब, स्वाद को पुर पढ़ेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे। फ़रग़ता फ़स्वब व इला, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, व इला रब्बिका, रा को पुर पढ़ेंगे और काफ को बारीक पढ़ेंगे। फ़ारुग़ब, रा को पुर पढ़ेंगे और बा के ऊपर कलकला करेंगे। व इला रब्बिका फ़ारुग़ब। एक दफा फिर से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی آگے نیکسٹ والی ہماری سورت ہے سورۃ القدر. سورۃ القدر مکیہ. سورۃ القدر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر ہم سب سے پہلے نون و شدت کا غنہ ادا کریں گے اور مد جائز ہے اس کو ادا کریں گے. پھر یہاں پہ اخفا ہے نون ساکن کے بعد زا اور پھر نون کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کھینچیں گے. ہو کو چھوٹا پڑیں گے. فی کو یا مدہ کی وجہ سے کھینچیں گے. لیلا لیلا میں یا لین ہے اور لا اس لام کو چھوٹا پڑیں گے. اور تل قدر قاف کو دال سے ملائیں گے اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ. یہاں پہ الف مدہ ہے اور مد جائز ہے. دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو کھینچیں گے اور کاف کو باریک ادا کریں گے. اور ما لیلۃ القدر ما لیلا ما میم کے ساتھ الف مدہ ہے اور لیلا لیلا میں یا لین ہے اور یہ دوسرا لام چھوٹا پڑیں گے. اور تل قدر قاف زبان کی جڑ سے ادا ہوگا اور دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. خیر میں یا لین ہے اور یہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. خیر من الف یہاں اظہار ہے نون ساکن کے بعد حمزہ. من الف شہر شین کو ہا سے ملائیں گے. ہا گلے کے آخری حصے سے. الف شہر. تنزل الملائکۃ تنزل لام کے اوپر مد واجب ہے اس کو کھینچیں گے اور حمزہ کو چھوٹا پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور کاف کو بھی چھوٹا پڑیں گے. تا کو بھی چھوٹا پڑیں گے. تنزل الملائکۃ والروح را کے ساتھ واو مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے. فی ہا فی میں یا مدہ ہے. ہا کے ساتھ الف مدہ ہے. فی ہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ با کو چھوٹا پڑھنا ہے. حمزہ زیر دال اذ زبان کی نوک اور سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے ادا ہوگا. ذال بِإِذْنِ نون کو بھی چھوٹا پڑھیں گے. رَبِّهِمْ را کو پر پڑھیں گے اور ہا کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ کریں گے. ادغام شفوی ہے. پھر آگے ہے میں کلی اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى. یہاں میں سلام پہ کیوں نہیں رکی کیونکہ یہاں پہ معانقہ ہے. یہ جو 3 ڈاٹ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں 3 نقطے ہیں 3 ڈاٹ ہیں اس کو بولتے ہیں معانقہ اور یہاں پر بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہاں پر امرین پہ میں رک جاتی تو پھر ہمیں سلام ان پہ نہیں رکنا. اور اگر ہم امرین پہ نہ رکیں اور پھر ہم سلام پر رکنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. دونوں جگہوں میں سے ایک جگہ پہ رکنا لازمی ہوتا ہے. میں دونوں طرح آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ. جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر اخفا بھی ہوگا. تنوین کے بعد سین ہے تو اخفا ادا کریں گے. اور اگر ہم کل امر پھر ہم آگے سے پڑھیں گے سلام ہی حتی. ٹھیک ہے. تو سلام ہی حتی یہاں پہ پھر اظہار ہوگا. ملا کر پڑھیں گے تو یہاں اخفا کرنا پڑے گا. اور اگر یہاں ہم رک جاتے ہیں تو ہم یہاں سے سلام ان سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں اظہار ہوگا. سلام ہیا ہا کو چھوٹا پڑھیں گے گلے کے آخری حصے سے نکلے گا. اور یا کو بھی چھوٹا پڑھیں گے حتی ہا گلے کے درمیان سے اور تا کے اوپر کھڑی زبر ہے.
मतोला, तो के ऊपर कलकला करेंगे, मतोला लाम को छोटा पढ़ेंगे, आइन को लाम से मिलाएंगे, मतोला इल फज्र, जीम के ऊपर कलकला करते हुए हम यहाँ रुकेंगे, हत्ता मतोला इल फज्र। ठीक है, एक दफा फिर सुन लें। सूरतुल क़दरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलाम, हिया हत्ता मतलअल फज्र। ठीक है, इसको इसी तरह से याद कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज। और अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और सुन के पढ़ेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से आप ये सूरतें याद कर सकते हैं और फिर हिफ्ज कर सकते हैं और फिर इनको अपनी नमाजों में शामिल कर सकते हैं। जी, हमारे सामने पेज खुल चुका है जो हमने दुआ सिलेक्ट की थी लेवल 4 के लिए, वो है कफारा मजलस। कफारा मजलस कहती है कि कहीं पर आपकी कोई मजलस है, कहीं आप बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, कोई भी आपकी मजलस है, तो जब आप उस मजलस को ख़त्म करते हैं, आप वहां से उठते हैं, तो उस वक़्त जो है आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए। उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई गैर ज़रूरी बात भी की होती है तो फिर वो आपके गुनाह में शामिल नहीं होती, वो फिर उसका गुनाह नहीं होता। फिर ये कफारा मजलस पढ़ने से वो आपके यानी गुनाहों की लिस्ट से वो बात निकल जाती है, आपकी नेकियां लिखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कफारा मजलस। ठीक है, और इसको वैसे भी नमाज के बाद भी इसको पढ़ना चाहिए, यानी जब आपने नमाज का इख्तिताम किया या आपने कुरान का इख्तिताम किया या आपने किसी भी अपने दर्स का या आपने किसी, ठीक है, तो ये इसकी अदायगी इस तरह से है, सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबह बा के ऊपर कलकला, हा अलिफ है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका, अंता देखे इसमें भी इख्फा हो रहा है, इल्ला अंता अस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका, फा को भी छोटा, रा को भी छोटा, काफ को भी छोटा, अस्तगफिरुका व अतूबु, ता को खींचना है आपने वाव मद्दा की वजह से, व अतूबु इलैक, ई को छोटा पढ़ेंगे और इसमें या लीन है, इलैका है, तो जब आप रुकेंगे तो इलैक। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं, अगर तो आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे अशहदु। ठीक है, और अगर आप सब जमात वाले, क्लास वाले, सब जितने भी लोग मजलिस वाले वहां बैठे हैं सब मिलके पढ़ रहे हैं, तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका, अस्तगफिरुका की जगह पे आएगा नस्तगफिरुका, नून लगे तो जमा का सीगा बन जाता है। फिर यहाँ पे व अतूबु की जगह पे वनतूबु इलैक। ठीक है, अब मैं आपको एक दफा अकेले के पढ़ के सुनाऊंगी और एक दफा फिर जमा के सीगा के साथ। ठीक है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, अब मैं जमा के सीगे के साथ पढ़ के आपको बता रही हूँ, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ठीक है, ये दोनों तरीके से जो है आप पढ़ सकते हैं। आप सब अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो अशहदु और अस्तगफिरु व अतूबु के साथ पढ़ेंगे, और अगर सब मिलके पढ़ रहे हैं तो नशहदु नस्तगफिरु व नतूबु। ठीक है, समझ आ गई है? चले, हमारा ये जो लेवल 4 है उसका हमारा ये काम खत्म हुआ।
جی الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں اور اس میں آپ کے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.